Class 10 Geography Chapter 5 Class 10 Geography Chapter 5 Minerals and Energy Resources Class 10 Geography Chapter 5 Minerals and Energy Resources खनिज तथा ऊर्जा संसाधन Part 1 Part 1 Class 10 Geography Chapter 5 Minerals and Energy Resources means खनिज तथा ऊर्जा संसाधन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए हब्बन यहाँ जब आपको कहा गया Hubban comes to Guwahati with his father from a remote village. He sees people getting into a strange house-like object which move along the road. He also sees a kitchen dragging a number of houses along with it. He is amazed and asks his father, "Why don't our houses move like the one we saw in Guwahati Bar?" Uh, Guwahati Bar. Bar replies, "These are not houses. They are buses and trains. Unlike our houses, these are not made of bricks and stone. Metal like iron and aluminium are used in making these. They don't move on their own. They are driven by an engine which needs energy to work." तो हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है। जो सड़क पर चलती है वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है कि पिताजी हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें एवं गाड़ियाँ हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों एवं पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं। ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। We use different things. We use different. We use different things. We use different things in our daily life made from matter. We use different things. We use different things in our daily life made from matter. Can you list a number of items used in your house made of metals? Where do these metals come from? यहाँ देखिए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएँ कहाँ से आती हैं? We use different things. देखिए, we use different things in our daily life. We use different things in our daily life made from metal. Can you list a number of items used in your house made of metals? Where do these metals from? हम अपनी रोज़मर्रा की You have studied that the Earth's crust is made of different minerals embedded in the rocks. Various metals are extracted from these minerals after proper refinement. यहाँ पे कहा गया यू हैव स्टडीड दैट द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स embedded in the rocks. Various metals are extracted from these minerals after proper refinement. Minerals are an indispensable parts of our lives. Almost everything we use, from a teeny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals. The railway lines and the tarmac it means paving of the roads. Our implements and machinery too are made from minerals. Car, buses, trains. Car, buses, trains, aeroplanes are manufactured from minerals and run on power resources derived from the earth. Even the food that we eat contains minerals in all stages of development. Human beings have used mineral for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites होता है। यहाँ पे देखिए
आपने कहा है कि भूपर्पटी पृथ्वी की ऊपरी परत आपने कहा है कि भूपर्पटी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। आपने कहा कि भूपर्पटी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों को उपयुक्त शोधन करके ही ये धातु निकाली जाती है। इन खनिजों को उपयुक्त शोधन करके ही ये धातु निकाली जाती है। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास के सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के खनिजों का प्रयोग किया है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपका है ए ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। ए ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथ, देखिए खनिज एवं दंतमंजन से उज्ज्वल एक मुस्कान। देखिए खनिज यहाँ पर जो कहा गया, देखिए ए ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। ए ब्राइट स्माइल, देखिए यहाँ पर ए ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स की बात यहाँ पर की गई है। खनिज एवं दंतमंजन से उज्ज्वल, खनिज एवं दंतमंजन से उज्ज्वल एक मुस्कान। खनिज एवं दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान की बात की गई है। देखिए टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ। एब्रेसिव, देखिए एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड phosphate various phosphate minerals do the cleaning. Fluoride, which is used to reduce cavities, comes from a mineral fluoride. Most toothpaste are made white with titanium. Most toothpaste are made white with titanium or titanium oxide, which comes from minerals called rutile, limonite, and anatase. The sparkle in toothpaste comes from mica. The toothbrush and tube containing the paste are made of plastic from petroleum. Find out where these minerals are found. दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं विभिन्न फास्फोर खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लूराइड जो दांतों को गड़ने से रोकता है। फ्लोराइड जो दांतों को गड़ने से रोकता है। फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि आपको रूटाइल, रूटाइल, इलेमनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण आपको अभ्रक है। टूथब्रश एवं पेस्ट की ट्यूब, देखिए टूथब्रश एवं पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। टूथब्रश एवं पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब ये बताइए कि ये खनिज कहाँ से पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, dig a little deeper and find out how many minerals are used to make a light bulb. देखिए जरा ध्यान से सोचिए। देखिए dig a little deeper, dig a little deeper, dig a little deeper, and find out how many minerals are used to make a light bulb. Dig a little deeper, and find out how many minerals are used to make a light bulb. देखिए जरा ध्यान से सोचें हम बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। जरा ध्यान सोचिए, हम बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। Dig a little deeper and find out how many minerals are used to make a light bulb. जरा ध्यान से सोचिए, हम बताएं
बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। हाँ, ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। सभी सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। लाइफ प्रोसेसेज कैन नॉट अकर विदाउट मिनरल्स। लाइफ प्रोसेसेज कैन नॉट अकर विदाउट मिनरल्स। Although our mineral intake represents only about 0.3% of our total intake of nutrients, they are also potent. They are so potent. They are so potent and so important that without them we would not be able to able to utilize the other 99.7% of food stuffs. यहाँ देखिए लाइफ प्रोसेसेज कैन नॉट अकर विदाउट मिनरल्स ऑल्दो आवर मिनरल इंटेक रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट 0.3% ऑफ आवर टोटल इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे आर ऑल्सो दे आर सो पोटेंट they are so potent and so important that without them we would not be able to utilize the other 99.7% of food stuffs। यहाँ हम जो कहा देखिए सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रियाएं नहीं चल सकती। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया आपको नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ये खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। फिर यहाँ पर कहता है dig a little deeper and collect a nutritional fact printed on food labels। देखिए यहाँ पर क्या कि जरा ध्यान सोचिए, हम बताए कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज ये तो हो चुका है। जरा ध्यान से सोचिए, हम बताए था भोज पदार्थों पर। जरा ध्यान सोचिए, हम बताए कि भोज पदार्थों पर अंकित पोषक तत्वों को इकट्ठा करें। भोज पदार्थों पर अंकित पोषक तत्वों को इकट्ठा करें। यहाँ देखिए आगे एक आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनरल, खनिज क्या। व्हाट इज मिनरल मतलब व्हाट इज अ मिनरल, खनिज क्या है। देखिए जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल हैज अ होमोजीनियस नेचुरली। यहाँ देखिए जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल हैज अ होमोजीनियस नेचुरली occurring substance with a definable internal structure with a definable internal structure. Minerals are found in varied forms in nature. Minerals are found in varied forms in nature, ranging from the hardest diamond to the softest tails. Softest tail. Why are they so varied? Why are they so varied? व्हाट इज अ खनिज क्या है। खनिज क्या है। व्हाट इज अ मिनरल। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। जिसमें कठोर हीरा नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों हैं। अब आगे यहाँ पे आपको अगर देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स आर कम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। यहाँ देखिए कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स। देखिए रॉक्स आर कम्बिनेशन ऑफ होमोजीनस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। Some rocks for instance limestone consist of a single mineral only। देखिए but majority of the rock consist of several mineral in varying proportion। Although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in most of the rocks।
A particular mineral, देखिए a particular mineral that will be formed from a certain combination of element is depends upon the physical and chemical condition under which the material forms. This in turn results in a wide range of colors, hardness, crystal forms, luster, and density that a particular mineral possesses. Particular mineral possesses. Geologists use these properties to classify the minerals. Geologists use these properties to classify the minerals. यहाँ पे एक चीज़ आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों की यौगिक। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों की यौगिक है। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों की यौगिक है। कुछ चट्टानें से चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है। कुछ चट्टानें से चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक एवं रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। आगे हम देखिए स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोलॉजिस्ट एंड जियोग्राफर्स। देखिए जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ मिनरल्स यहाँ जो कहा गया। देखिए स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। देखिए जियोग्राफर स्टडी मिनरल्स हैज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स। The distribution of mineral resource and associated economic activities are of interest to geographers. A geologist, however, is interested in the formation of minerals, their age, and physical and chemical composition. However, for general and commercial purposes, minerals can be classified as under. देखिए यहाँ पर क्या है कि भूगोलविद स्थाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलविद अस्त्राकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेता खनिज संसाधनों के वितरण एवं खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं। भूगोलवेता खनिज संसाधनों के वितरण एवं खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं। भूगोलवेता खनिज संसाधनों के वितरण एवं खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में भूगोलवेता आपको खनिज संसाधनों के वितरण एवं खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं। परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु एवं खनिजों के भौतिक एवं रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया क्या, देखिए मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स की बात की गई है। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मोड ऑफ यहाँ देखिए आपको क्या कि however, for general and commercial purpose, minerals can be classified as an under. देखिए समान एवं वाणिज्यिक, जिसको व्यापारिक बोलते हैं, समान या वाणिज्यिक या व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला देखिए अब क्या, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मतलब क्या है, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स मतलब क्या, खनिजों की उपलब्धता। देखिए मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, खनिजों की उपलब्धता के आधार पर देखिए वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड। ये सामान्यतः देखिए खनिज कहाँ पाए जाते हैं, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स मतलब आपके यहाँ पर हो गया खनिजों की उपलब्धता, और वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। फिर आप आगे यहाँ पर कहता है
सामान्यतः देखिए मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स द term ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with other elements. The mineral content of the ore, the mineral content of the ore must be in sufficient concentration to make its extraction commercially viable. The type of formation or structure in which they are found determines the relative case which the relative is they are found determines the relative is the relative easy with which mineral ores may be mined, mined. This also determines the cost of extraction. It is therefore important for us to understand the main types of formation in which minerals occur. देखिए सामान्यतः खनिज आपको अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व भी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्वहन एवं संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य सेल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है जिसमें ये खनिज पाए जाते हैं। देखिए खनिज प्राय निम्न सेल समूह से प्राप्त होते हैं, मतलब चट्टान समूह से प्राप्त होते हैं। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक की यहाँ बात की गई है। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक आग्नेय तथा कायांतित चट्टानों में खनिज देखिए यहाँ पर। In igneous and metamorphic rocks, minerals may occur in the cracks, crevices, faults, or joints. The small occurrences are called veins, and the larger are called lodes. यहाँ LODS lodes. In most cases, they are formed when minerals in liquid, molten, and gaseous forms are forced upward through cavities toward the Earth's surface. They cool and solidify as they rise. Major metallic minerals like tin, copper, zinc, and lead etc. are obtained from veins and lodes. देखिए आग्नेय तथा कांतित चट्टानों में खनिज दरारों जोड़ों भ्रंशों एवं विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव शिलाओं के रूप में और वृत्त जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे आपको जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं एवं जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे जो कहा इन सेडिमेंट्री रॉक्स ए नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और layers. They have been formed as a result of deposition, accumulation, and concentration in horizontal strata. Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heats and pressure. Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash, salt, and sodium salt. These are formed as a result of evaporation, especially in arid regions. यहाँ पे जो आपको कहा गया देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया क्या कि अनेक खनिज आपको अवसादी चट्टानों अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में आपको क्षैतिज परतों निक्षेपण संचयन एवं जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक
लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा एवं दबाव का परिणाम अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी। अवसादी चट्टानों आपको दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक एवं सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेष सूक्ष्म प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। इनका निर्माण आपको विशेषकर सूक्ष्म प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप आपको होता है। हाँ, फिर आपके यहाँ पर तीसरी जो पॉइंट आपके यहाँ पर है, तीसरी पॉइंट फिर यहाँ आपको देखिए क्या कि अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन, तीसरा नंबर देखिए, another mode of formation involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents, leaving a residual mass of withered material containing ores. Bauxite is formed this way. तो खनिजों के यहाँ तीसरा पॉइंट, खनिजों के निर्माण की एक अनुविधि धरातल या चट्टानों का अपघटन है। खनिजों के निर्माण की एक अनुविधि धरातल या चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अक्ष वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार आपको होता है। खनिजों के निर्माण की एक अनुविधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। खनिजों के निर्माण की एक अनुविधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील खनिजों के निर्माण की एक अनुविधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात एक्स वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। अब ऑक्साइड का निर्माण इसी प्रकार आपको होता है। फिर आपको आगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स यहाँ पर दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यहाँ पे खनिजों का वर्गीकरण देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की जो बात आपको यहाँ पर की गई, उसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। खनिजों का वर्गीकरण यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। खनिजों का जो वर्गीकरण है उसमें आपको मिनरल्स को 3 भागों में बांटा गया। एक मेटालिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं धात्विक, और दूसरा होता है आपको नॉन मेटालिक जिसको बोलते हैं अधात्विक, और तीसरा होता है एनर्जी मिनरल्स जिसको बोलते हैं ऊर्जा खनिज बोलते हैं। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आपको कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते हैं। जिस ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आपको कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल प्राकृतिक गैस आते हैं। नॉन मेटालिक के अंतर्गत आपको मीका, साल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन आते हैं। तो अधात्विक के अंतर्गत आपको अभ्रक, अधात्विक अंतर्गत जिसको हम लाइमस्टोन, मीका अभ्रक हो गया, नमक हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, चुनासम हो गया, ग्रेनाइट को चुनासम बोलते हैं। लाइम स्टोन आपको हो गया, लाइम स्टोन संगमरमर बलुआ पत्थर, लाइम स्टोन आपको लाइम स्टोन मार्बल जिसे बोलते हैं। उसके बाद देखिए मेटालिक की बात करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मेटालिक को देखिए, 3 भागों में बांटा गया है। प्रीसियस मेटालिक जिसमें बोलते हैं बहुमूल्य खनिज, जिसमें आपको गोल्ड आते हैं, सिल्वर आते हैं, प्लेटिनम आते हैं। उसका मेटालिक देखिए, मेटालिक का दूसरा भाग होता है नॉन फेरस जिसको बोलते हैं अलो जैसे बोलते हैं। जैसे आपको कॉपर हो गया, लीड हो गया, टीन हो गया, बॉक्साइड हो गया, तांबा जिस सीसा जस्ता बॉक्साइड इत्यादि। अब देखिए लो फेरस कंटेनिंग आयरन, जिसमें आपको लोहा होता है उसको बोलते हैं फेरस। आयरन हो गया, आयरन और हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो आपको जिसमें देखिए लोहा का अंश हो, जैसे लो हो गया, आयक्स हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट आदि। यहाँ तक रखिए। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 5 पार्ट 2। इसमें यहाँ पर खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स को एक बार फिर से देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यहाँ पे जो कहा गया मिनरल्स को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। मिनरल्स को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? तो 3 भागों में बांट रहे हैं। देखिए मिनरल्स खनिज को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपको है मेटालिक जिसको धात्विक बोलते हैं, दूसरा आपको होता है नॉन मेटालिक जिसको अधात्विक बोलते हैं, और तीसरा यहाँ पर आपको देख रहे हैं एनर्जी मिनरल्स जिसको ऊर्जा खनिज बोलते हैं। तो मेटालिक को भी 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है मेटालिक को भी 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला आपको मेटालिक आप यहाँ पर देख रहे हैं। मेटालिक को 3 भागों में पहला होता है लो धातु और दूसरा होता है अलो होता है, और तीसरा आपको बहुमूल्य खनिज होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेटालिक में
तो यहाँ देखिए मेटालिक को मतलब धातु को 3 भागों में बाँटते हैं, जिसमें पहला होता है लोह धातु जिसे बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में फेरस मेटेलिक बोलते हैं। फेरस मेटेलिक जिसे बोलते हैं, जिसमें आपको लोहा होता है। एग्जाम्पल में देखिए आयरन हो गया, जैसे एग्जाम्पल आपको आयरन हो गया, जैसे लोहा हो गया, और हो गया, और मतलब अयस्क हो गया। उसके बाद देखिए मैंगनीज हो गया, निकेल हो गया, या जिसको निकल भी बोलते हैं, अंग्रेजी में निकेल बोलते हैं, हिंदी में निकल बोलते हैं, एवं कोबाल्ट हो गया। अब देखिए नॉन फेरस जिसमें अलो, जिसमें लोहा का गुण नहीं होता है। आलू यहाँ पे देखिए, आलू मतलब आपको एग्जाम कॉपर आते हैं, लेड आते हैं, लेड आते हैं, टीन आते हैं, बॉक्साइड आते हैं, जिसमें आपको देखिए तांबा, सीसा, जस्ता एवं बॉक्साइड आते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता एवं बॉक्साइड आपको आते हैं। अब देखिए प्रीसियस मेटेरिक में आपका अंतर्गत, प्रीसियस मतलब बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत क्या आते हैं? बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आपको यहाँ पे देख सकते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम आते हैं, जिसको सोना, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम बोलते हैं। अब यहाँ देखिए नॉन मेटेलिक की बात करते हैं, लेकिन नॉन मेटेलिक के अंतर्गत आपको एग्जाम्पल में देखिए, नॉन मेटेलिक के अंतर्गत आपके यहाँ पर नॉन मेटेलिक के अंतर्गत, जैसे अधात्विक के अंतर्गत आपके यहाँ पर आ गया मीका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, etc। आधात्विक के अंतर्गत आपको अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनासम, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर इत्यादि आते हैं। अब देखिए एनर्जी मिनरल्स, देखिए एनर्जी मिनरल्स के अंतर्गत क्या आते हैं? तो एनर्जी मिनरल्स के अंतर्गत ऊर्जा खनिज का, देखिए ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आपको आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। तो अब यहाँ पे एक और ख़ास बात जो देखिए, खनिज उपलब्धता यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक और जो चीज़ आपको यहाँ पर कहा गया है, इसको यहाँ पर देखिए मोड्स ऑफ, देखिए यहाँ पर मोड्स ऑफ, देखिए मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स की यहाँ पे बात की गई है। मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि खनिजों की उपलब्धता की बात यहाँ पर की, खनिजों की उपलब्धता की बात यहाँ पर की गई है। देखिए व्हाट आर दीज मिनरल्स फाउंड, देखिए सॉरी वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, ये खनिज आपको कहाँ पाए जाते हैं? देखिए सामान्यतः मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, and the term ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with other elements। यहाँ पे देखिए सामान्यतः खनिज एक्सों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में सामान्यतः खनिज एक्सों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण, तत्वों के मिश्रण या संचयन, अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। देखो खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। यहाँ पर आपको खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा, इनके निर्माण एवं संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या है कि द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन sufficient concentration to make its extraction commercially viable. The type of information or structure in which they are found determines the relative ease with which mineral ores may be mined. This also determines the cost of extraction. It is therefore important for us to understand the main types of formation in which minerals occur. Minerals generally occur in these forms. Minerals generally occur in these forms. खनिज प्राय निम्न शैल समूह से प्राप्त होते हैं। जिसमें पहला हम देखिए क्या, देखिए एक पहला यहाँ पर इन इग्नियस, यहाँ जो कहा गया देखिए इन इग्नियस,
देखिए इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स, देखिए इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स में अकर इन द cracks crevices of faults or joints. The smaller occurrences are called veins, veins veins, and the larger are called lodes, lods lodes. In most cases they are formed when minerals in liquid, molten, and gaseous forms are forced upward through cavities toward the Earth's surface. They cool and solidify. As they rise. Major metallic minerals like tin, copper, zinc, and lead etc. are obtained from veins and lodes. देखिए यहाँ पर जो कहा गया आयरन तथा कांति चट्टानों में खनिज दरारों जोड़ों भ्रंशों एवं विद्रोह मिलते हैं। छोटे जमाव, देखिए छोटे जमाव सिराओं के रूप में छोटे जमाव सिराओं के रूप में और वृत्त जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडा होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता तांबा जिंक और सीसा आदि इसी तरह आपको सिराओं एवं जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर आपको दूसरा ख पॉइंट यहाँ देखिए, इन सेडिमेंट्री रॉक्स ए नंबर ऑफ मिनरल्स अकर्स इन बेड्स और लेयर्स, BEDS beds or layer. They have been formed as a result of deposition, accumulation, and concentration in horizontal strata. Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash, salt, and sodium salt. These are formed as a result of evaporation, especially in arid regions. देखिए यहाँ पे जो कहा गया उसको थोड़ा समझ देखिए अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन एवं जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक ऊष्मा एवं दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक एवं सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। अब यहाँ पे देखिए गौ नंबर की बात यहाँ पर की गई है, मतलब 3 नंबर देखिए अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन। देखिए अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ soluble constituents, leaving a residual mass of withered material containing ores. Bauxite is formed this way. यहाँ हम देखिए क्या कि खनिजों के निर्माण की एक विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। आपको होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर 4 नंबर में कहा गया देखिए कि सर्टेन मिनरल्स, देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लावर्स एंड द बेस ऑफ hills. These deposits are called placer deposits and generally contain minerals which are not crowded by water. Gold, silver, tin, and platinum are most important among such minerals. देखिए यहाँ पर 4 नंबर में जो आपको कहा गया कि पहाड़ियों के आधार पर अभी देखिए पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तर की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन एवं प्लेटिनम प्रमुख है। फिर आपको 5 में यहाँ पर देखिए कहा गया, 5 में आपको यहाँ पर कहा द ओशन वाटर। देखिए द ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज। देखिए द ओशन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ these are too widely diffused to be of economic significance. However, common salt, magnesium, and bromine are largely derived from ocean waters. The ocean beds too are rich in manganese nodules। यहाँ पे जो कहा गया देखिए 5 नंबर में
महासागरीय जल में भी देखिए, महासागरीय जल में विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विकसित होने का इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित प्रग्रहित अर्थात डिराइव्ड होते हैं, अर्थात निकाले जाते हैं। महासागरीय तली में देखिए, महासागरीय तली भी मैंगनीज ग्रंथिकाओं, जिसको अंग्रेजी में नूडल्स में धनी है। मतलब महासागरीय तली में भी आपको मैंगनीज ग्रंथिकाएँ नूडल्स आपका काफ़ी अधिक है। यहाँ पर देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर हम चलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट में कहा गया, देखिए, रेड हॉल माइनिंग, डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया minerals are owned by individuals or communities. In Meghalaya, there are large deposits of coal, iron ore, limestone, and dolomite, etc. Coal mining in Jowai and Cherrapunji is done by family members in the form of a long, narrow tunnel known as Red Hall Mining. The National Green Tribunal (NGT), the National Green Tribunal has declared such activities illegal and recommended that these should be stopped forthwith. देखिए, रेट हॉल जिसे बोलते हैं कि रेट हॉल खनन क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है, और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का आपको स्वामित्व व्यक्तिगत एवं समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में आपको कोयला, लो एक्स, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई एवं चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट हॉल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया था और सलाह दी कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। देखिए, स्टॉप फोर्थविथ, देखिए यहाँ पर फोर्थविथ मतलब तुरंत आपको होता है। फिर आगे यहाँ पर का डिग अ लिटिल डीपर, मतलब जरा सा सोचिए यहाँ पर, डिग अ लिटिल डीपर। देखिए जरा ध्यान से सोचिए, हम बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन पिट माइन, ए क्वारी एंड एन अंडरग्राउंड माइन विथ शाफ्ट्स। जरा ध्यान सोचिए, हम बताएं कि देखिए, एक खुली खदान ओपन पिट माइन, एक खुली खदान जिसको ओपन पिट माइन बोलते हैं, उत्खनन एवं एक सख्त युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है। अब यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर क्या, इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेस। हाउएवर दीज आर unevenly distributed. Broadly speaking, peninsular rocks contain most of the reserves of coal, metallic minerals, mica, and many other non-metallic minerals. Sedimentary rocks on western and eastern planks of the peninsula in Gujarat and Assam have most of the petroleum deposits. Rajasthan with the rock system of peninsula has reserves of many non-ferrous minerals. The vast alluvial plains of North India are almost devoid of economic minerals. These various exist largely because of the difference in the geological structure, processes and time involved in the formation of minerals. Let us now study the distribution of a few major minerals in India. Always remember that the concentration of mineral in the ore, the ease of extraction, and closeness to the market play an important role in affecting the economic viability of a reserve. To meet the demand, a choice has to be made between a number of possible options. When this is done, a mineral deposits or reserve turns into a mine. देखिए यहाँ पर कि भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अवरक एवं अन्य अनेक अधात्विक खनिजों का अधिकांश भंडार संचित है। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्व पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं।
देखिए प्रायद्वीपीय सेल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोक खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत रोड मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में आपको अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचनाओं, प्रक्रिया और समय के कारण आपको है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का आपको अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का शानदार उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय रिजर्व की आर्थिक जीवयता वायबिलिटी और को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मिनरल्स की बात की गई। फेरस मिनरल्स की बात की लो खनिज की यहाँ पर बात की गई। यहाँ पर देखिए फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ meteorological industries. India exports some substantial quantities of ferrous minerals after meeting her internal demands. यहाँ देखिए लोक खनिज की बात है कि लोक खनिज धात्विक खनिजों कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु लो धा- लो देखिए लो खनिज आपको धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। अब यहाँ देखिए आयरन ओर की बात आपको की गई। आयरन ओर की देखिए आप क्या लो एक्स जिसको हम आयरन ओर बोलते हैं उसको यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडिया इज एंडोवेड विथ अ फेयरली अबाउंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट Magnetite is the finest iron ore with a very high content of iron up to 70%. It has excellent magnetic qualities, especially valuable in the electrical industry. Hematite ore is the most important industrial iron ore in terms of the quantity used, but has a slightly lower iron content than magnetite, 50 to 60% into 50 to 60%. In 2018-19, almost entire production of iron ore, 97% accrued from Odisha, Chhattisgarh, Karnataka, and Jharkhand. The remaining production 3% was from other states. लो एक्स एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में आपको लो एक्स के विपुल संसाधन विद्वान है, मतलब बहुत अधिक संसाधन मौजूद हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लो एक्स में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लो एक्स है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लो एक्स है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50-60% तक पाया जाता है। अब यहाँ देखिए क्या आप जानते हैं, डू यू और नो में यहाँ पर आपको कहा गया क्या आप जानते हैं। यहाँ देखिए क्या कि कुदरे देखिए यहाँ पर क्या कुदरे यहाँ देखिए कुदरे इन कनाडा मीन्स हॉर्स। द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका रिजेंबर्स कुदरे मीन्स कन्नड़। यहाँ पर देखिए कन्नड़ आपको बोलते हैं। कुदरे इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स। द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका रिजेंबर्स द फेस ऑफ ए हॉर्स। द बेला यहाँ देखिए बेला देखिए यहाँ पर क्या है कि बेला डीला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स एंड हेंस इज इट्स नेम। कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ घोड़ा है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के डील अर्थात हम्प से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा। अब आगे यहाँ पर जो खास चीज़ें आपको कही गई उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं।
अब देखिए इससे पहले जो आपको इंटरेस्टिंग डू यू नो के बाद जो यहाँ पे एक आपको यहाँ पर मैप दिया गया, या मैप नहीं आपको यहाँ बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ देखिए लो एक्स उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो एक आपको मैप उसको था से यहाँ ये फिगर देख लीजिए आपको यहाँ पर। देखिए फिगर आपको महाराष्ट्र आपको प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट 2018-19 में आपको मैंगनीज उत्पादन में राज्यों का जो आपको शेयर है, हिस्सा है, उसको यहाँ पर शो किया गया इस फिगर में। ये जो डाटा है ये आपको क्या, ये जो डाटा आपको लिया गया है ये आपको लिया गया है खान मंत्रा वार्षिक रिपोर्ट 2016 से 10 लिया गया है। लो एक्स उत्पादन राज्यों का अंश प्रतिशत यहाँ पर ये आपको लो एक्स में राज्यों का अंश, इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको लो एक्स में राज्यों का जो आपको अंश हिस्सा है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें से ओडिशा आपको लो एक्स में 12% योगदान करता है। ओडिशा पूरे भारत में आपको अकेले 12% लो एक्स का आपको उत्पादन करता है, जबकि छत्तीसगढ़ मात्र 16%, कर्नाटक 16% और झारखंड 11% और आपको अन्य राज्य 7% योगदान करता है। अब यहाँ देखिए मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज उत्पादन में जो राज्य है महाराष्ट्र है। मैंगनीज उत्पादन महाराष्ट्र अकेले आपको 27% करता है। सबसे अधिक आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश 33% करता है, कर्नाटक 12% करता है, ओडिशा 16% करता है और आंध्र प्रदेश 10% करता है और आपको अदर्स 2% करता है। इसके बाद आपको देखिए मैंगनीज यहाँ पर हुआ, इसके जस्ट इसके बाद यहाँ पर जो आपको देखने को है क्या, देखिए द मेजर आयरन ओर्स, द मेजर यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखिए यहाँ भारत में लो एक्स जो आपको यहाँ पर है कि द मेजर आयरन और बेल्ट, द मेजर आयरन बेल्ट्स आर देखिए मैग्नेटाइट किंतु अधिक इसमें लोहांश की मात्रा किंतु अब मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है, मतलब हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पे जो कहा उसको देखिए, द मेजर आयरन, देखिए द मेजर आयरन और बेल्ट इन इंडिया, द मेजर आयरन और बेल्ट इन इंडिया। तो भारत में लो एक्स की पट्टियाँ देखिए, भारत में लो एक्स की जो पट्टियाँ हैं, पेटियाँ, उसमें हम देखिए द मेजर आयरन और द मेजर आयरन और बेल्ट इन इंडिया आर। देखिए भारत में लो एक्स की पेटियाँ जो आपको हम उसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसको यहाँ पर देख लीजिए। इसमें जो कहा गया ओडिशा झारखंड, यहाँ देखिए कहा गया ओडिशा झारखंड बेल्ट, ओडिशा झारखंड बेल्ट करके ओडिशा झारखंड पेटी, ओडिशा झारखंड पेटी। यहाँ पर देखिए इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट और इज फाउंड इन बादाम पहाड़। यहाँ पर देखिए बादाम पहाड़, आपको बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। हेमेटाइट आयरन ore is mined in Gu and Nomundi। यहाँ देखिए कहा ओडिशा झारखंड पेटी, देखिए ओडिशा झारखंड पेटी की बात करें, ओडिशा झारखंड पेटी में क्या है कि ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लो एक्स मयूरभंज एवं केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। देखिए ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लो एक्स मयूरभंज एवं केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सनिध झारखंड के सिंहभूम जिले में गु अथवा नोआमुंडी से हेमेटाइट एक्स का खनन किया जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पर कि ड्रग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट लाइज इन। दूसरा जो यहाँ पर कहा गया देखिए ड्रग बस्तर, देखिए ड्रग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बेलाढीला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। द रेंज ऑफ हिल्स comprise of 14 deposits of super high grade hematite iron ore. It has the best physical properties needed for steel making. Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via विशाखापट्टनम पोर्ट। देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि देखिए दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के देखिए इस गुणवत्ता के आपको 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्वान है। इन खदानों का लो एक्स विशाखापट्टनम पतन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। फिर आप आगे यहाँ पे आपको है
देखिए आगे आपको देखिए बलारी, देखिए आपको बलारी अच्छा बलारी चित्रदुर्ग, बलारी चित्रदुर्ग बलारी दुर्ग और चिकमंगलुरु 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 belt in Karnataka has large reserve of iron oil. The Kundre mines located in the western Ghat of Karnataka are a 100% export unit. Kundremukh deposits are known to be one of the largest in the world. The ore is transported has slowly through a pipeline to a port near Mangaluru. यहाँ देखिए क्या बराड़ी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तुमकुरू पेटी कर्नाटक इस पेटी में लो एक्स की विहित राशि संचित आपको देखिए राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित कुंद्रेमुख की खाने 7% निर्यात इकाई है। कुंद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लो एक्स कर्दम स्लरी रूप में पाइपलाइन द्वारा बेंगलुरु के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ Ratnagiri districts of Maharashtra, though the ores are not of very high quality, yet they are efficiently exploited. Iron ore is exported through मारमेगो पोर्ट। देखिए महाराष्ट्र का पेटी के बाद देखिए यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मर गाँव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा जाता है क्या कि आपको प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज शोइंग स्टेट वाइज से इन परसेंटेज में यहाँ देखिए मैंगनीज की बात यहाँ पर आपको की गई है। यहाँ आपको मैंगनीज है तो मैंगनीज की बात यहाँ पे देखिए Manganese is mainly used in the manufacturing of steel and ferromanganese alloy. Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides and paints. देखिए यहाँ मैंगनीज के बारे में बताया गया। मैंगनीज में क्या खास कही गई, देखिए मैंगनीज मुख्य रूप से मैंगनीज जो आपको यहाँ पर है, मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। एक टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं एवं पेंट बनाने में किया जाता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया मैंगनीज उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में कितना 2017 में आपको कितना है। देखिए यहाँ पर आपको जो कहा गया महाराष्ट्र में आपको सबसे अधिक मैंगनीज मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मैंगनीज 27%, महाराष्ट्र में आपको 25%, ओडिशा में भी आपको 25% ही है। उसके बाद कर्नाटक 11%, आंध्र प्रदेश 10% और अन्य राज्य 2% का योगदान देते हैं। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए डिग अ लिटिल, यहाँ पर जो फिर आगे आपको कहा गया यहाँ देखिए डिग अ लिटिल डीपर की बात थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए डिग अ लिटिल डीपर का मतलब होगा थोड़ा सा जरा ध्यान से सोचें, हम बताएं डिग अ लिटिल डीपर। यहाँ देखिए सुप्रीम पोज द मैप शोइंग a distribution of iron ore, manganese, coal and iron and steel industry. Do you see any correlation? Why? देखिए ज़रा ध्यान से सोचे और भारत में लो एक्स मैंगनीज कोयला तथा लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें। क्या आप इनमें कोई संबंध देखते हैं? स्पष्ट करें। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए नॉन फेरस मिनरल्स की बात यहाँ पर की गई है। नॉन फेरस मिनरल्स यहाँ देखिए नॉन फेरस मिनरल्स की जो बात की उसके साथ यहाँ पर देखिए जिसको नॉन फेरस मिनरल्स को ही उससे पर आपको यहाँ देखिए क्या कि भारत उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000 और 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग उड़ीसा से प्राप्त हुआ था। अब हम देखिए अलोक खनिज की बात आपको यहाँ पर की गई है।
देखिए यहाँ पर अलोक खनिज है, तो इसको थोड़ा-सा आप यहाँ देखिए, अलोक खनिज क्या होता है? देखिए नॉन फेरस मिनरल जिसको हम बोलते हैं। इंडिया रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज़ नॉट वेरी सैटिस्फैक्टरी। However, these minerals, which include copper, bauxite, lead, zinc, and gold, play a vital role in a number of metallurgical, engineering, and electrical industries. Let us study the distribution of copper and bauxite. देखिए, भारत में अलोक खनिजों के संचित राशि एवं उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग एवं विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ एक मैप आपको शो किया गया। इस मैप को आप देखिए, ये जो मैप आपके महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण, भारत में जो महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण है वो आपको यहाँ पर शो किया गया इस मैप में। इसका हम अलग से कीजिए। अब यहाँ देखिए, एक कॉपर की सबसे आपके यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पे आपको देखिए यहाँ पर कॉपर तांबा की आपको बात की, उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कॉपर तांबा को। पर कॉपर की बात की, देखिए कॉपर हम जो कहा गया, इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशियंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, बीइंग मैलिएबल। देखिए बीइंग मैलिएबल, डक्टाइल एंड ए गुड कंडक्टर, कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। द बालाघाट, देखिए द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसन ऑफ कॉपर। नहीं, देखिए यहाँ पर क्या इंडस्ट्री, द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेती माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। देखिए भारत में तांबे के भंडार एवं उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। भारत में तांबे के भंडार तांबा भारत में तांबे के भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। धातु, देखिए धातुवध्य, धातुवध्य जिसको मैलिएबल बोलते हैं, तन्य और धातुवर्ध अंग्रेजी मैलिएबल, धातुवर्ध और तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदान देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेती खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ आगे देखिए क्या है कि बॉक्साइट की बात आपको की गई। देखिए बॉक्साइट की जो बात आपको की गई है उसको थोड़ा सा प्रयास कीजिए। बॉक्साइट आपके यहाँ आगे देखिए, बॉक्साइट आपको है, देखिए दो यहाँ पर जो दो सेवरल ऑर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज फ्रॉम बॉक्साइट ए क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन। Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminium silicates. Aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. India is the cap. India's bauxite deposits are mainly found in Amarkantak Plateau, Maikal, देखिए Maikal Hills, and the Plateau region of Bilaspur Katni। यहाँ पे देखिए बिलासपुर कटनी, यहाँ पे जो कहा गया इसमें ओडिशा वाज द लार्जेस्ट, देखिए ओडिशा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2016-17। देखिए पंचपतमली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट्स। आगे यहाँ पर आपको कहा गया, यद्यपि अनेक अयस्कों में, देखिए यद्यपि अनेक अयस्कों में आपको एल्युमिनियम पाया जाता है। यद्यपि अनेक अयस्कों में आपको एल्युमिनियम पाया जाता है बॉक्साइट के अंतर्गत। यद्यपि अनेक अयस्कों में आपको एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नताओं वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धातुवर्धता मेलेबिलिटी भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मेकार पहाड़ तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं।
यहाँ आपको देखिए कुछ इमेज आपको यहाँ पर बॉक्साइट माइंस की बॉक्साइट माइंस मतलब बॉक्साइट खदान मले देखिए मल्ज खंड में तांबा खदान के यहाँ पर कुछ फिगर आपको दिया गया, मल्ज खंड में तांबा खदान कुछ फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पर आपको है क्या कि बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का अंश देखिए यहाँ प्रतिशत में आपको दिया गया है, तो सबसे अधिक आपको ओडिशा बॉक्साइट 49% योगदान देता है सबसे अधिक। उसके बाद गुजरात 24%, झारखंड आपको 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र आज 8% और अन्य राज्य 2% का योगदान देते हैं। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया इसके बाद आगे देखिए ओडिशा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2016-17। पंचमपली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट। फिर आपको यहाँ पर आगे कहा गया देखिए भारत में बॉक्साइट के नीचे मुख्यतः अमरकंटक पठार, मेकार पहाड़ तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए आगे यहाँ पर है क्या कि ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। 2016-17 के यहाँ 2016-17 यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। अब एक ज़रा ध्यान सोचें, हम बताएं भारत के भौतिक मानचित्र की पर बॉक्साइट की खानें चिन्हित करें। अब देखिए डिग अ लिटिल डीपर, स्टडी द मैप्स इन एक्सप्लेन व्हाई छोटा नागपुर इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर देखिए इसके बाद आपके यहाँ पर क्या है कि इससे पहले जो आपके यहाँ कहा गया था देखिए डी गली लोकेट द माइंस ऑफ बॉक्साइड ऑन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इसका मतलब ज़रा ध्यान सोचिए भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइड की खानें चिन्हित करें। तो फिर आप इसके आगे यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपके यहाँ पर है, इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात आपके यहाँ पर एक रोचक तथ्य की बात यहाँ पर कही गई है। देखिए एक रोचक तथ्य आपके यहाँ पर है interesting fact देखिए after the discovery of aluminium emperor Napoleon III wore buttons and hooks on his cloth made of aluminium and served food to his more illustration guests in aluminium utensils, and the less honorable ones were served in gold and silver utensils. 30 years after this incident, aluminium balls were most common with the beggars in Paris। देखिए एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक एवं बटन पहनता था। अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था। आम मेहमानों को सोने एवं चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। अब एक नॉन मेटालिक की बात यहाँ पर की गई, नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात की गई, जिसमें आपको नॉन मेटालिक मिनरल्स मतलब अधात्विक खनिज की बात यहाँ पर की गई है। देखिए मीका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। इट स्प्लिट्स इजिली इनटू थिन शीट्स। दीज शीट्स कैन बी सो थिन दैट ए थाउजेंड कैन बी लेयर्ड इनटू ए मीका शीट ऑफ ए फ्यू सेंटीमीटर्स हाई। Mica can be clear, black, green, and red, yellow, or brown due to its excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating properties, and resistance to high voltage. Mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए मीका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। इन राजस्थान द मेजर मीका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर। नेल्लोर मीका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। देखिए मीका अभ्रक की बात यहाँ पे की देखिए अभ्रक देखिए यहाँ पर क्या अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पतन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन स्पिल्ट आसानी से हो सकता है। ये परत इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च प्रावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, देखिए विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की
प्रतिरोधिता कारण आपको अभ्रक विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप को छोटा नागपुर पठार उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड कोडरमा गया हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास, आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, अब यहाँ देखो कहा गया कि हैजार्ड्स ऑफ, देखिए यहाँ पर रॉक्स मिनरल्स की बात यहाँ पर की गई। देखिए रॉक्स मिनरल्स की बात यहाँ पर की गई। देखिए जिसको हम बोलते हैं चट्टानी खनिज, रॉक्स मिनरल चट्टानी खनिज की बात यहाँ पर आपको है। देखिए लाइम स्टोन, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, लाइम स्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। इट इज़ फाउंड, देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल formation. Limestone is the basic raw material for the cement industry and essential for smelting iron ore in the blast furnace। यहाँ देखिए क्या कि चूना पत्थर जिसको बोलते, चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लो प्रगलन की भट्ठी के लिए अनिवार्य है, आपको अनिवार्य है। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया डिग अ लिटिल डीपर। देखिए ज़्यादा ध्यान सोचे हम बताए। देखिए स्टडी द मैप्स टू एक्सप्लेन व्हाई छोटा नागपुर इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। मानचित्र का अध्ययन करें, बताया कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे एक इमेज जो दिया है, देखिए प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट 2019। चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश परसेंट 2016-17 में आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो कहा गया, देखो राजस्थान की बात, देखिए राजस्थान आपको कितना आपको है, चूना पत्थर उत्पादन राज्यों का अंश जो आपको है, आपको राजस्थान 21% है, इंग्लिश में 20% दिया गया। मध्य प्रदेश आपको 13% इंग्लिश में दिया गया। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में 11% दिया गया। उसको एक ही डाटा लीजिए। ये आपके देखिए राजस्थान में आपको 21% है, मध्य प्रदेश में 13% है, आंध्र प्रदेश में भी 13% ही है। आंध्र प्रदेश में 13 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, कर्नाटक में 9% है, तेलंगाना में 8% है, गुजरात में 7, तमिलनाडु में 6 और महाराष्ट्र में 4 और अदर्स में 8% आपको है। अदर राज्यों में आपको 8% प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन शोइंग एस्टेट वाइज इन 2018-19 की बात यहाँ पर आपको की गई थी। फिर आपको आगे यहाँ पर एक और ख़ास बात, देखिए आपके यहाँ पर क्या हैज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग की बात यहाँ पर की गई है। हैज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग, देखिए यहाँ पर देखिए एक उससे पहले कुछ ख़ास चीज़ यहाँ पर देखिए क्या कि चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोह प्रगलन की भट्टियों के अनिवार्य आपको है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए खनन को घातक उद्योग किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। आपको आगे यहाँ पर कहा गया, हाँ, इससे पहले जो खास बात है आपको यहाँ पर कहें, लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस। फिर आपको देखिए प्रोडक्ट्स, ये हजार्स ऑफ माइनिंग आपके यहाँ पर है, हजार्स ऑफ माइनिंग आपको है। देखिए यहाँ पे फिर देखिए स्ट्रिक्टर, देखिए स्ट्रिक्टर सेफ्टी, देखिए स्ट्रिक्टर यहाँ पर जो कहा गया स्ट्रिक्टर सेफ्टी regulation and implementation of environment laws are essential to prevent माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। इसका ये तात्पर्य यहाँ पर हुआ क्या, इसका ये तात्पर्य आपको हुआ कि खनन को घातक उद्योग किलर इंडस्ट्री बढ़ने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। तो फिर आपको इससे पहले कुछ खास बातें यहाँ पर आपको दिया गया, क्या हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग की बात यहाँ पर की गई है। हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग जो उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, खनन के जोखिम या खतरे की बात की, खनन के जोखिम या खतरे की बातें आपके यहाँ पर की गई है। देखिए खनन की जोखिम या आपको खतरे की जो बात है, देखिए हैव यू एवर, देखिए हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग, खनन के जोखिम या खतरे यहाँ पर देखिए जो आपको मुख्य रूप से है। देखिए हैव यू एवर वंडर अबाउट एफर्ट द माइंड्स मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर यू, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड द एनवायरनमेंट, द डस्ट एंड नॉक्सियस fumes inhaled by
miners make them vulnerable to pulmonary disease. The risk of collapsing the risk of collapsing mine roofs inundation and fires in coal mines coal mines are a constant threat to miners. The water source, देखिए the water source in the region get contaminated due to mining and dumping of waste and slurry. Dumping of waste and slurry leads to degradation of land, soil and increase in stream and river pollution. यहाँ पे जो आपको कहा गया, देखिए क्या आपने कभी खनिकों द्वारा यहाँ जो कहा, देखिए क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक को लगातार धूल एवं हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़े संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने जल प्लावित होना जिसे बोलते हैं, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के अस्थायी है। खदान क्षेत्रों में खदान क्षेत्रों को खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे अवशिष्ट पदार्थ और खनिज तरल के मलबे के खता लगाने से भूमि एवं मिट्टी का अपचय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। देखिए खनन क्षेत्र में धूल उठने से वायु प्रदूषण जैसे होता है, एयर पोल्यूशन ड्यू टू जनरेशन ऑफ डस्ट इन माइनिंग एरियाज। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको एक अखबार कतरनी दिया गया, इससे छोड़िए, इसका कोई इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये अखबार की कतरनी आपके यहाँ पर है, मतलब अखबार के टुकड़े आपको यहाँ पर है। अब देखिए खनिजों का संरक्षण की बात आपके यहाँ पर की गई है, खनिजों का जो संरक्षण है उसकी बात आपके यहाँ पर है।